Good afternoon, friends. I welcome you again to Jasla Academia powered by Abhimanyu IS. So, friends, this is in continuation of our series that is called as the discussion of previous years question papers that appeared in Haryana Judiciary. We have already discussed, you know, I mean, certain subjects, particularly 2018 question papers in constitutional law, contract, sales of goods, right, and Indian Partnership Act, right, and alongside we also discussed CRPC, right, and evidence, okay, and CPC and other the question papers are in the offing. They shall be covered or discussed very soon, right. So, today I am discussing, I won't be taking much of your time because we have the constraint of time, because we have to cover almost all the papers, as well as we have to start another series by the name of Judiciary through MCQs, that is in the offing, and that shall be started most likely in a couple of days or in a day or so, right. So, today I am discussing the question paper of Haryana Judiciary that appeared in 2017, right. In 2017, I have already covered yesterday, I mean a day before, the constitutional law. We discussed around 12 to 13 questions with explanations, right. Similarly, today I am discussing 2017 Haryana Judiciary question paper of Indian Contract Act, right. Indian Contract Act, does carry good amount of weightage so far as Haryana Judiciary is concerned, or for that matter, right, judicial exam of any other state, right. And in 2017 we had around 7 questions, right. They are very conceptually loaded questions, right, which I am trying to discuss, and not elaborately, but at least giving you some directions about the about the areas from where these questions have been or had been asked, right. So, without wasting our time, let us move on to question number 1. Question number 1. So, friend, question number 1 in 2017 from the subject of Indian Contract Act was, a contract of life insurance is in the nature of what? लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो आपको ये कैटेगोरिकली पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट किस स्पीसीज में हम इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, और अमंग द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट can be quasi contract, contract can be express, contract can be void, it can be voidable, it can be unenforceable, and so on. There are various kinds of or varieties of contracts. उन्हीं सभी कैटेगरी में एक और कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि सच ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है. कंटीजेंट का मतलब ही यही होता है कि मैं किसी आदमी से एग्रीमेंट कर रहा हूं और उसको कहता हूं कि राइट, अगर ये चीज़ होती है, राइट, इसमें सब्जेक्ट है, अगर ये चीज़ होती है या नहीं होती है, राइट, तब राइट जाके ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, ठीक है. मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट, बट इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम other kinds of contract which are absolutely void under the Indian Contract Act, जिनको हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स कहते हैं. बैट के जैसे, राइट, अगर इंडिया मैच जीतेगा, ठीक है, जिसमें हमने बैट लगाए हैं, तो मैं वो भी एक टाइप का कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है, राइट. इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अगर इंडिया मैच जीतेगा तो मैं इतनी बैट लगाता हूँ, इतना पैसा दूंगा, वो भी, बट वो एक वेजरिंग अग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, राइट. समय कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ये हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट जितने भी, चाहे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो या लाइफ का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्या करते हैं कि आई एम रेडी टू पे द इंश्योरेंस कंपनी ए पर्टिकुलर सम एज प्रीमियम, राइट, एंड द इंश्योरेंस कंपनी will indemnify me या compensate me in case I or any member of my family
राइट, यू नो फॉल इल, ठीक है, या कोई और इंजरी या किस टाइप का कवरेज आपने लिया है, तो वो किसके, राइट, या मैं गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो आई एम राइट, दो इंश्योरेंस कंपनी विल राइट पे मी, राइट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड दैट, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटिजेंसी, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटिजेंसी आर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट. सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, लाइफ इंश्योरेंस भी एक contingent contract है, right? It must be distinguished from another species of contract called as contract of indemnity, right? Contract of indemnity नहीं है ये, contract of, ठीक है, ये contract of इंश्योरेंस है. ये क्यों contract of contingency है, जो contingent contract है, right? इसका क्या रीज़न है, that shall be discussed in the due course in the main class, but right, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या आंसर मिलता है, ठीक है, C, that is it is a contingent contract. It is a, right, I'm sorry, it is a contingent contract, right? A life insurance is a contract in which one party agrees to pay. Contingent से ही आपको self explanation मिल जाएगी कि it depends upon the happening or not happening of a particular event, right? A life insurance is a contract in which one party agrees to pay a given sum of money, जो given sum of money उसको हम premium कहते हैं, right, upon the happening of a particular event contingent upon the duration of human life, ठीक है, समय human life की duration, right, के ऊपर ये dependent है, right, समय उसी के बेसिस पे what we call as premium दिया जा रहा है, and therefore, right, समय therefore it is a contingent contract, ठीक है. तो आपने ये समझना है कि contingent contract, जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं they are all contingent contract, right, तो आपने इतना समझ लेना है, तो इट्स अ contingent contract, right. एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, नो, इट इज़ रॉन्ग. पहले मैंने आपको बताया वो बेटिंग के एग्रीमेंट वाइड होते हैं, नो. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि राइट देयर इज़ नो, राइट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होती, बट फिर भी लीगल ऑब्लिगेशन इनकर करती हैं पार्टीज, राइट, राइट, वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. जैसे यू नो ड्यूटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ गुड्स टू रिटर्न द गुड्स, यू नो, इसमें बिल्कुल एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, राइट. Contingent contract because it depends upon, it is contingent upon the happening or not happening. ये तो happening तो होनी है तभी तो लाइफ इंश्योरेंस है, राइट, इसलिए ये contingent contract है. Gracious contract तो there is no contract as such which is gracious contract. So answer is C. Moving on to question 2. M agrees to pay N 10,000 rupees if two parallel lines should enclose a space. The agreement is, right. Please इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे आप कंसेप्ट सीरीज़ के वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देख सकते हैं, राइट. और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें आपको एक लॉ सिंप्लीफाइड की सीरीज़, यू नो, उसके वीडियोस मिलेंगे. उसमें मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, समय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से लेके बहुत से कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, और एक डॉक्ट्रिन डिस्कस की है, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन of contract. So doctrine of frustration of contract, meaning that, right, there are meaning that any agreement, any contract which deals with the performance of an impossible act, ठीक है, impossible जो perform नहीं हो सकता, ठीक है, impossibility of performance. frustration का मतलब होता है defeating the very purpose of the contract, ठीक है. अगर मैं ए और बी की एग्जांपल लेता हूँ, राइट, ए इज द बॉय एंड बी इज हिज गर्लफ्रेंड, राइट, तो वो बी को कहता है कि आई विल प्लक, यू नो, इफ़ यू मैरी मी, राइट, आई विल प्लक स्टार्स फ्रॉम द स्काई फॉर यू, राइट. तो ये something which is absolutely impossible, although there is an offer and there is an acceptance that, but this is something, right, which is not possible to be performed, right. समय, राइट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देयरफॉर सिंस two parallel lines cannot be should enclose a space, therefore two parallel lines agrees to pay 10,000 rupees दूंगा अगर दो parallel lines, राइट, एक स्पेस को इनक्लोज करती हैं, तो सच एन एग्रीमेंट इज नॉट, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है और ना ही कोई एक स्पेस को इनक्लोज कर सकती है. देयरफॉर, राइट, सच एन एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट,
ठीक है, जो मैंने बहुत से ए बी को कहता है कि आई एम रेडी टू पे यू 1 लाख रुपीज़ अगर तुम मेरी डेड वाइफ को जिंदा कर दोगे, ठीक है, राइट, समय, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग, राइट, विच कैन नॉट बी पॉसिबली परफॉर्म्ड, एंड देयरफॉर दिस agreement also suffers from impossibility of performance and hence become void. Such agreements are void agreement. तो ऐसे agreements को कौन सी डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अपने इसको हम क्या बोलेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द वेरी पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फ्रस्ट्रेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? तो आंसर डी आई हैव ऑलरेडी, ठीक है, मेंशन सच कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, विच कैन नॉट बी पॉसिबली परफॉर्म्ड, राइट। ये इम्पॉसिबिलिटी दो किस्म की होती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, राइट, समय। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स, बट आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसे एग्रीमेंट वाइड होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, दैट इज अंडर द मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज सच कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी पॉसिबली परफॉर्म्ड, राइट, दे सफर फ्रॉम impossibility of performance, right. Doctrine of frustration of contract is applied to such kind of agreement, and frustration का मतलब होता है defeating the very purpose of the contract, ठीक है, right। जैसे ये पैरेलल लाइन की, कोई एक पैरेलल लाइन अगर एक स्पेस को, राइट, एक पर्टिकुलर स्पेस को, या पैरेलल लाइन, आप ये भी कह सकते हो अदर वे अराउंड, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए बी को कहता है कि आई विल पे यू 10,000 रुपीज़ इफ यू मेक two parallel lines join together, right, at a particular point. Again, such an agreement is impossible, such an act is impossible to perform, therefore such an agreement will also be void. Moving on to question number 3. When consideration or object of an agreement is partly unlawful under Indian Contract Act 1872, the agreement is, ठीक है, ये बड़ा significant question है, there is big catch, right, in this question, राइट। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, बट जो कि सबसे बड़े फैक्ट्स ये आपको पता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, राइट, जिसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो वो एग्रीमेंट वाइड होता है, ठीक है, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैटेगोरिकली स्पेसिफाइज सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, राइट, whose object and consideration, I am not going into the details। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर तुम मुझे गवर्नमेंट की जॉब दिला दोगे, राइट, देन आई विल पे यू 5 लाख रुपीज़, ठीक है, राइट, समय। सिंस सच एन एग्रीमेंट, its objective as well as its consideration both are unlawful, because to fetch a government job through unlawful means, right, cannot be considered lawful, and therefore such an agreement is unlawful, राइट, एंड इट्स कंसिडरेशन इज ऑल्सो अनलॉफुल। जो 5 लाख रुपया जो उसने सपोज ए ने बी से ये प्रॉमिस किया कि 5 लाख के बदले मुझे गवर्नमेंट जॉब आप दिलाओगे, बट ए फेल्स टू गारंटी हिम दैट पर्टिकुलर जॉब, तो बी हैज़ नो रिकोर्स थ्रू ए कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब सच एन एग्रीमेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग वॉज वाइड एब इनिशियो, राइट। हाउएवर देयर अराइजेस ए सिचुएशन व्हेन an agreement, right, whose consideration and object, or for that matter whose consideration or object is partly unlawful and partly lawful, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि पार्टली लॉफुल है, ठीक है, जिसका कंसिडरेशन जो ऑब्जेक्ट पार्टली लॉफुल है और पार्टली अनलॉफुल है, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि इसका एक बड़ा पॉपुलर केस भी हुआ 1903 में। आई वोंट बी मेंशनिंग केस here while discussing this। A और B, ठीक है, A एक प्लेंटिफ है और B एक डिफेंडेंट है, राइट। ये आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि प्लेंटिफ विल बी सर्विंग एज व्हाट यू कॉल एज serving as a person in an adulterous relationship with B, ठीक है, एंड इन lieu of that जो B है, राइट, वो उसको 50,000 रुपीज़ देगा, ठीक है। केस भी हुआ, ठीक है, कि अगर ए बी के साथ अडल्टस रिलेशन पर रहेगा तो 50,000 मिलेंगे, राइट, बट साथ साथ में ये भी एग्रीमेंट करते हैं कि 50,000 में आपको हाउस की जो जिसे कहते हैं हाउस कीपर का काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। हियर द अमाउंट 50,000 is a consideration for the promise, right, wherein, right, A has agreed to serve as to live in an adulterous relationship with B, right, and
simultaneously also agreed to serve as housekeeper. ठीक है, right? Now in this case जो 50,000 जो consideration है, right? वो consideration किसके लिए? adulterous relationship में रहना, it's basically immoral. ठीक है, it is unlawful आप ये कह सकते हो, right? Now in such a case, right? In such a case, right? Such an agreement would become void. Only exception is that अगर ऐसा होता कि जो अनलॉफुल पार्ट है वो लॉफुल पार्ट से सेपरेट होता, लॉफुल पार्ट मीन जो अनलॉफुल पार्ट है अग्रीमेंट का, ठीक है, राइट, वो लॉफुल पार्ट से, ठीक है, सपोज इसी एग्जांपल में हम देखते हैं कि हाउस कीपर सर्व करना, ठीक है, राइट, इज लॉफुल, whereas to live in an adulterous relationship is unlawful, right? अगर ऐसा होता कि 50,000, right, में से, right, the defendant, you know, has agreed to pay A, right, suppose 30,000 rupees for serving as living in an adulterous relationship and 20,000 rupees for serving as a housekeeper, right? In that case, right, the consideration would have been separated. So in case the lawful consideration or lawful object can be separated from the unlawful one, right, then जो पार्ट लॉफुल है उसको कोर्ट एनफोर्स करेंगी और जो अनलॉफुल है उसको वाइड डिक्लेयर कर देंगी, राइट? तो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट इस क्वेश्चन में एक कैच है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, इसमें सीधा पूछा है कि व्हेन कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज पार्टली अनलॉफुल, राइट, इज पार्टली अनलॉफुल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एग्रीमेंट इज, राइट? हमें ये नहीं है, तो इसका आपने सिंपल ये याद रखना है कि अगर अनलॉफुल और लॉफुल पार्ट को सेपरेट किया जा सकता है, इसको आप कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी, ठीक है, जैसे हमारे आर्टिकल आपको पता है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होती है, राइट? तो अगर लॉफुल पार्ट अनलॉफुल पार्ट से सेपरेट या सवेयर हो सकता है, राइट, तो लॉफुल पार्ट को इन्फोर्स करेगी कोर्ट, ठीक है, और जो अनलॉफुल पार्ट है उसको वाइड डिक्लेयर कर देगी। बट हियर अमंग द चॉइसेस देयर इज नथिंग स्पेसिफिक मेंशन, यू नो, इन दिस रिगार्ड, देयरफॉर हम इसको बोलेंगे दिस एंटायर एग्रीमेंट इज वाइड, ठीक है। सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने याद रखना, सेक्शन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, इट स्टेट दैट इफ अनलॉफुल पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लॉफुल पार्ट देन द होल ऑफ द एग्रीमेंट इज वाइड, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी और वाइडेबल नहीं हो सकता, वो पार्शली वाइड एंड पार्शली वाइडेबल, अगर पार्शली वाइड एंड पार्शली वैलिड होता तो चॉइस ये ठीक होती, ये वाइडेबल लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, राइट, देयरफॉर ओनली ऑप्शन इज द वाइड, इतना याद रखना सेक्शन 24 में, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट जिनका कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है और जिनका ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है वो तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वाइड हैं, बट ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं वेयर इन, राइट, द एग्रीमेंट, राइट, वेयर इन an agreement where the consideration as well as the object, you know, is partly, right, what is that, partly lawful and partly unlawful, ठीक है। तो in this case आपने बोलना है कि if, right, समझे, मैंने आपको एग्जांपल भी दी, राइट, अगर लॉफुल पार्ट अनलॉफुल पार्ट से सेपरेट हो सकता है तो लॉफुल को कोर्ट इन्फोर्स कर सकती हैं, राइट, और अनलॉफुल को वाइड डिक्लेयर कर देंगे। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, when consent to an agreement is caused by misrepresentation, right, under Indian Contract Act 1872 the agreement is, right, आपको पता होगा फ्री कंसेंट, ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, मेंशंस सर्टेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी कुछ कंडीशंस हैं, राइट, और उसमें यू नो आपको पता हुआ कि यू नो देयर मस्ट बी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, राइट, इट मस्ट नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, राइट, इट मस्ट नॉट सफर फ्रॉम यू नो अदर विशिएटिंग सर्कमस्टांसेस, इसको कहते हैं विशिएटिंग सर्कमस्टांसेस, ये विशिएटिंग होता है, राइट, समथिंग विच विशिएट ए वैलिड एग्रीमेंट इज रेफर टू एज एन एग्रीमेंट दैट सफर्स फ्रॉम फ्री कंसेंट। तो पहले लिख दिया कि व्हेन कंसेंट, बिकॉज कंसेंट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, राइट, अगर किसी पार्टी की आपने कंसेंट, राइट, मिस रिप्रेजेंटेशन से, मिस रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है कि मिस रिप्रेजेंट करना के मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, उस चीज़ को यू नो बता देना, जैसे ए ने बी को कहा कि यू नो
right, I'm ready to sell you my car which does not exist at all, right? समझे? तो उसको मिस रिप्रेजेंट किया, राइट? मिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी ऑफ लॉ और इट कैन बी अ फैक्ट, बट जो भी एग्रीमेंट आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से कंक्लूड किया है, दैट इज अ विशिएटिंग फैक्टर, राइट, फॉर ए वैलिड एग्रीमेंट, एंड देयरफॉर always remember that agreement suffers from what you class suffers from the requirement of free consent, which is very vital, right, in an agreement, or such an agreement under the Indian Contract Act becomes voidable. Voidable उन agreement को कहते हैं which can be avoided at the option of the party. जिस पार्टी की consent आपने misrepresentation करके ली है उस किसी agreement के लिए, उस पार्टी की option है कि उस agreement को वो avoid कर सकता है, ठीक है, राइट, जिसे कहते हैं कि रिसिंड कर सकता है, रिसिंड या अवॉइड कर सकता है, एंड इसलिए ऐसा एग्रीमेंट वाइडेबल बन जाएगा. आंसर इज सी. इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, देन द पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस वाइडेबल. रेफर टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कहते हैं, राइट. ओके, मूविंग ऑन. फिफ्थ क्वेश्चन. A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to the future transaction. ये surety और, ठीक है, ये surety और right किसका, creditor का question है जी, ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, राइट, यहाँ तीन पार्टीज होती हैं, एक श्योरिटी होता है, राइट, एक डेटर होता है, राइट, समझ, और एक क्रेडिटर होता है. सपोज बैंक में, राइट, ए ने लोन लिया, ठीक है, एंड यू स्टैंड एज गारंटी, गारंटी और श्योरिटी, राइट, अगेंस्ट द लोन विच इज टेकन बाय ए फ्रॉम द बैंक, बैंक क्रेडिटर इन दिस केस, राइट. तो इसमें आपने सीधा आंसर करना है कि कोई भी कंटिन्यू गारंटी जो एक व्हाट श्योरिटी ने दी है, ठीक है, श्योरिटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, तो वो नोटिस टू द क्रेडिटर को एडवांस नोटिस देके अपने आप को एब्जॉल्व कर सकता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन. तो आंसर ए इज देयर, ठीक है. कंटिन्यू गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर एज पर सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट. मूविंग ऑन टू सेकंड लॉट क्वेश्चन. What can be a catalog of books listing price of each book and specifying the place where the listed books are available be termed as? आपको पता है, ठीक है, it is needless to repeat again कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें दो एसेंशियल कंडीशन सबसे पहले चाहिए. ऑल्दो देयर आर मेनी सच कंडीशंस, पर दो बड़ी ज़रूरी चीज़ हैं. एक ऑफ़र, जो आदमी ऑफ़र कर रहा है या जिसको हम ऑफरर कहेंगे, और एक उसको एक्सेप्ट करेगा जिसको हम ऑफरी कहेंगे, ठीक है, राइट. बट देयर आर सम सिचुएशंस, राइट, वेयरइन देखने में वो ऑफ़र लगती है बट एक्चुअल में वो ऑफ़र नहीं है. इसकी एग्जांपल है एक कैटलॉग ऑफ बुक्स. एक पब्लिशिंग हाउस आपको एक बुक्स का कैटलॉग देता है, राइट, और पर्टिकुलर बुक्स के प्राइसेस, राइट, मेंशन किए हैं हर एक बुक के अगेंस्ट, राइट. That cannot be construed as an offer, right, but it is an invitation and offer. Offer आप करोगे जब आप किसी पर्टिकुलर बुक को सिलेक्ट करोगे, राइट, एंड अग्री टू द प्राइस मेंशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बुक, और राइट, कौन से, और अल्टीमेटली उस बुक स्टोर से आप वो बुक खरीद रहे हो, राइट, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तब जाके आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा. ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाते हैं, वहाँ मेन्यू कार्ड देखते हैं. मेन्यू कार्ड में जो प्राइसेस लेके हर डिशेस के अगेंस्ट, हर क्विजीन के अगेंस्ट, राइट, दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफर फ्रॉम द होटलियर या फ्रॉम द रेस्टोरेंट, राइट, फॉर दैट मैटर, राइट. वो एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है, ठीक है. ऐसा ही ऑक्शन सेल में होता है, ठीक है. बिडिंग जब होती है उसमें भी एक इन्विटेशन ऑफ ऑफर होती है, राइट. इज दैट क्लियर? वो ऑफर जो सबसे लोएस्ट बिडर होगा उसकी ऑफर एक्सेप्ट करेगी बिडिंग जो बिड कर रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली, राइट, उसका ऑफर नहीं, उसके मतलब वो ऑफर कर रहा है, उसकी वो जो उसकी बिड सिलेक्ट होगी वो एक ऑफर होगी, राइट, एंड अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड. जैसे आप होटल या रेस्टोरेंट की मैंने एग्जांपल दी, तो इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है. It is an invitation when a person advertises that he has something to sell or a house to let in. There is no offer to be bound by the contract. It is nothing but an invitation to offer in all these cases. ये invitation to offer होती है. एक मैंने होटल की एग्जांपल दे दी आपको और कैटलॉग की दे दी, ठीक है, या फॉर दैट मैटर
ऑक्शन सेल जब हो रही है, दैट इज एन इन्विटेशन एंड ऑफर. इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एन ऑफर, राइट. एंड लास्ट क्वेश्चन जी, X being in debt to Y, the money lender of his village contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionable. ठीक है, that the contract was not induced by undue influence is to be proved by. ठीक है, आपको पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, राइट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने के लिए, राइट, समय द फ्री कंसेंट, जो फ्री कंसेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इट मस्ट नॉट बी विशिएटेड. ठीक है, the free consent of a party can be vitiated either by mistake, either by undue influence, either by, ठीक है, by misrepresentation. बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू किसी की फ्री कंसेंट, राइट, समझे, विशिएट हो सकती है. अगर वो कंसेंट विशिएट है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, राइट. हियर इन दिस केस, राइट, undue influence is also a vitiating factor for free consent, but इसका जहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये किसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी कंसेंट जो है, राइट, कौन से, ये मैंने किसी पार्टी के कंसेंट कौन से अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं ली है, तो ये लाइबिलिटी होगी किसकी इन दिस क्वेश्चन, एक्स बीइंग द इन डेट टू वाई द मनी लेंडर, राइट. मनी लेंडर अगर हो गया, केस चला तो वो एक डिफेंडेंट हो गया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिफेंडेंट की रादर देन ऑफ द प्लेंटिफ, राइट. तो ए इज द आंसर इन दिस केस. In case undue, it is the duty of the person who is in a position of dominance. Undue influence तो आपको पता ही है कि undue influence किसको कहते हैं, राइट. ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक आदमी डोमिनेंट पोजीशन में है और दूसरे की, राइट, दूसरे की जो पोजीशन है उसको वो सप्रेस कर सकता है, राइट. इन दिस केस, राइट, तो undue influence, राइट, राइट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रूव करना, द पर्सन हु इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट. तो इन दिस केस A is the answer. So friends, this is all about, ठीक है, right, 7 questions that appeared in 2017, right, from the field of Indian Contract Act, right, and we shall be coming up, very soon with other questions that appeared in 2017 or 2015, right. Till then, bye bye, thank you.